Reena Chaudhary. As you know students, we are discussing chemical thermodynamics. In previous lecture students, we have already seen types of process. As you remember, the process was such as isothermal process. So in isothermal process, what we have done is, while doing any kind of reaction, we will always keep our temperature constant. And at that particular time, our delta T was 0. But at delta T was 0, that doesn't mean my temperature was constant, but it was such as that my temperature does not change with change in time in a reaction. After that, we have studied isobaric process students. So I hope you remember what is isobaric process. In isobaric process, what you have seen is, in isobaric process, pressure is always constant. Matlab, whatever reaction I am going to perform, I am going to perform it at constant pressure. My pressure will not vary. If it is one atmospheric process, until and unless my whole process get completed, it will remain one atmospheric pressure. So to do that, like to maintain that pressure, we always have to do some sort of adjustment. Like I have to change my volume and all those things that you can do in a reaction. Now when we will learn first law of thermodynamics, then again we are going to relate this process with that. After that, we have seen isochoric process. In isochoric process, we always keep our volume constant. That means our volume is not changing with change in time. Our volume will remain as it is. And at the end, in previous lecture, you have seen adiabatic process students. So students, when we are talking about adiabatic process, you remember what happens in adiabatic process? Beta, here your delta Q was not 0, but in adiabatic process, your Q was 0. That means there was no transfer of heat from system to surrounding. This is what are the four processes which we have discussed so far. Now student, in today's lecture, we are going to discuss two more types of process. That is what you have to study in thermodynamics, and it is known as reversible process, which is one of the most important process to understand thermodynamics. If you don't understand the concept of reversible process and irreversible process, it will be difficult for you to as well understand what is thermodynamics. Apart from that student, after reversible process, we are going to see what is irreversible process. So okay, now we are starting with today's topic, and my topic is reversible process. Now students, as you all are aware with chemical thermodynamics. So in chemical thermodynamics, you have seen, or in class 11 you have studied chemical equilibrium. In chemical equilibrium, you have studied about two types of arrow. Right student, you have studied this kind of arrow, and this is known as a bidirectional arrow. So in bidirectional arrow, one half is indicating forward reaction and another half was indicating backward reaction. So student, the forward reaction which we are calling here, that means if anything from bottom to top, if anything is moving from bottom to top or from down to up, in this case it is known as driving force. Driving force. This is for thermodynamics. अगर कोई चीज आगे यहाँ से आगे की तरफ जा रही है तो उसको हम ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं बेटा। और अगर कोई चीज दोबारा रिटर्न आ रही है, मतलब मैं कहीं पे गई और जाके मैं दोबारा से रिटर्न आ गई, तो उसे हम बेटा अपोजिंग फोर्स बोलते हैं। वी कॉल इट एज अ अपोजिंग फोर्स। जैसे कि आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, तो बॉल जो ऊपर गया है वहां पे लग रहा है ड्राइविंग फोर्स। बच्चों, कौन सा फोर्स लग रहा है? ड्राइविंग फोर्स लग रहा है ऊपर जाने के लिए। लेकिन अगर आप बॉल को देखोगे तो बॉल ऊपर गया, अब ऊपर से कोई फोर्स लगा रहा है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। वो फोर्स आप नहीं लगा रहे हो बच्चों, वो फोर्स सराउंडिंग लगा रहा है, और आपका बॉल क्या हो गया बच्चों? नीचे आ गया। जब आपका बॉल नीचे आ गया ना, तो बॉल को नीचे लाने का जो काम किया है वो किसने किया है? अपोजिंग फोर्स ने।
अगर मैं ऊपर जाती हूँ तो इट इज नोन एज ड्राइविंग फोर्स। बेटा मैं अब ड्राइविंग फोर्स को डीएफ ही लिखूंगी और अपोजिंग फोर्स को ओएफ। और अगर कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो कौन सा फोर्स लग रहा है? अपोजिंग फोर्स लग रहा है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का कंसेप्ट समझने के लिए ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ड्राइविंग फोर्स क्या? जो आगे की तरफ जा रहा है या जो ऊपर की तरफ जा रहा है। अपोजिंग फोर्स क्या है बच्चों? अपोजिंग फोर्स होता है नीचे आना या दोबारा से चले आना। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है बेटा? रिवर्सिबल प्रोसेस हो क्या सकता है? व्हाट इज ऑल अबाउट रिवर्सिबल प्रोसेस? मैं कहीं गई और जाके दोबारा आ गई। रिवर्सिबल का तो मतलब यही होता है ना, दोबारा हो जाना। तो कोई भी ऐसी चीज जो बार बार हो छोटे छोटे स्टेप्स में, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप को रिपीट करता रहे एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। बट यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में इसको और क्लियरली समझने के लिए वी विल टॉक अबाउट और हम डिफरेंशिएट करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बीच में। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे मैं एक मूवेबल पिस्टन की हेल्प से आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है वो समझाती हूँ कि मूवेबल पिस्टन में क्या सीन होता है एंड हाउ वी आर गोइंग टू सी दिस। अभी तो फॉर नाउ इट इज अ एयर क्लोज कंटेनर, ये एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर के ऊपर लगा हुआ है एक पिस्टन। इस कंटेनर के ऊपर लगा हुआ है एक पिस्टन और मेरे पास जो फिगर है ये एक मूवेबल पिस्टन की फिगर है। अब मूवेबल पिस्टन कैसा होता है बच्चों? मूवेबल पिस्टन बिल्कुल वो जो होली में आप लोग पिचकारी यूज़ करते हो उसी की तरह होता है। अगर मैंने बाहर से पिचकारी में प्रेशर डालते हैं तो अंदर जो पानी होता है वो क्या हो जाता है? बाहर की तरफ चला जाता है। मतलब बाहर का प्रेशर ज़्यादा लग गया तो वाटर जो है, जो उसके पास होल है, उससे निकल गया। अब बिल्कुल यहाँ पे ये जो मेरे पास पिस्टन है, यहाँ पे मैंने पानी के बजाय फिल किया हुआ है गैस और इसके अंदर है गैस। अब बच्चों इस गैस का कुछ प्रेशर है और उस प्रेशर की वजह से मेरे पिस्टन का ये पोजीशन मेंटेन है। और मान के चलते हैं कि हमने बाहर भी कुछ वेट्स रख दिए हैं और वो वेट्स क्या कर रहे हैं? वो वेट एक बाहर से भी प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं। नहीं तो फिर ये क्या होता, अगर गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो पिस्टन एकदम से ऊपर आएगा। लेकिन इस पोजीशन पे मेंटेन करने के लिए हमारे पास बाहर भी कुछ वेट लगा हुआ है। अब जो प्रेशर बाहर से एक्ट करता है, जो प्रेशर बाहर से एक्ट करता है उसको हम पी एक्सटर्नल बोलते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं। और यहाँ पे अंदर जो तुम्हारे अंदर प्रेशर है उसको तुम प्रेशर से डिनोट कर सकते हो। इट इज सिंपली प्रेशर विच इज पी। बेटा जो ये अंदर वाला सीन है ना, ये सिस्टम है, और जो इसके बाहर है मतलब ये वेट है और ये तुम्हारा जो है वो सब कुछ सराउंडिंग है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है हमें ये देखना है। तो बच्चों उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ क्या होगा अगर मैंने यहाँ से थोड़ा सा वेट उठा दिया। अगर मैंने यहाँ से थोड़ा सा वेट उठा दिया, मतलब इंस्टेड ऑफ 6 kg अगर मैंने 5 kg कर दिया, तो मेरे बाहर का प्रेशर बढ़ेगा या अंदर का? अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बाहर का प्रेशर कैसा हो गया बच्चों? बाहर का प्रेशर जो है वो कम हो गया, तो मेरे इंटरनल प्रेशर इंक्रीज हो गई। अगर मैंने ऊपर से वेट कम कर दिया तो अब मेरे पिस्टन का जो इनिशियल वॉल्यूम V1 था वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। मतलब अब मेरा पिस्टन जो है वो समहाउ इस पोजीशन पे आ जाएगा और वो V2 पे चला गया। ठीक है बच्चों। अब अगर मैंने थोड़ा सा और वेट हटा दिया, अगर मैंने 1 kg वेट और हटा दिया, तो अब मेरा पिस्टन का पोजीशन जो यहाँ पे था, क्योंकि अंदर से प्रेशर बढ़ रहा है, तो अंदर से प्रेशर बढ़ रहा है मतलब वो ऊपर की तरफ उसको खींच रहा है। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने थोड़ा सा और प्रेशर को क्या कर दिया? कम कर दिया। क्या करके? वेट को हटा के। तो अब क्या होगा बच्चों? और थोड़ा सा ऊपर मेरा पिस्टन मूव हो जाएगा, मतलब मेरी ये पोजीशन धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है।
मैं ध्यान दोगे बच्चों तो मैं एक एक करके उठा रही हूँ, मैंने एकदम से कोई चीज़ नहीं हटाई है। पहले मैंने 1 किलो उठाया, फिर मैंने 2 किलो उठाया और मैंने 3 किलो उठाया। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं दोबारा से ये V1 की पोजीशन पे आना चाहती हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से V1 की पोजीशन पे आना चाहती हूँ। तो मैंने फिर से 1 किलो वेट अपना डाल दिया। तो जब मेरा पिस्टन V3 पे था, यहाँ पे आ गया था वॉल्यूम 3 पे, तो अब जब मैंने 1 किलो डाला तो वो दोबारा से थोड़ा नीचे की तरफ मूव हुआ और मेरा पिस्टन किधर आ गया, इस तरफ आ गया। इस बार क्या हो रहा है बच्चों, इस बार तुम्हारे बाहर का प्रेशर, जिसको तुम एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हो, वो एक्ट कर रहा है, वो डोमिनेट कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, इसको नीचे की तरफ भेज रहा है। फिर दोबारा से जब तुम्हारा एक्सटर्नल प्रेशर, अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं इसको और नीचे करना चाहती हूँ, मैंने और एक वेट डाल दिया। अब बच्चों मैं फिर से बाहर का प्रेशर बढ़ा रही हूँ। तो जब मैं बाहर का प्रेशर बढ़ा रही हूँ तो ये दोबारा से किधर शिफ्ट हो गया बेटा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, स्लाइटली डाउनवर्ड। और लास्ट में मैंने फिर से क्या किया, इसको एक और वेट के थ्रू और एक वेट लगाया 3 से, जो 1 kg का था। और अब मेरा पिस्टन बिल्कुल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, किस पे आ गया, V1 पे आ गया। बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है, एक चेंज हुआ दोबारा आ गया, एक चेंज हुआ दोबारा आ गया। तो इसको समझने के लिए मैंने तुमको बोला था ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स। अब इसकी बात करते हैं ज़रा सा, रिवर्सिबल प्रोसेस को और डे टू डे एक्टिविटी के हिसाब से समझते हो। अगर 2 ऐसे बच्चे हैं जो इक्वली वेट में सेम है या जिनकी हेल्दी है उतने ही, ठीक है, अगर दोनों में फाइटिंग हो रही है, इफ बोथ ऑफ देम आर फाइटिंग, तो पता है ना, अगर एक ने मारा तो मैक्सिमम चांस है कि सामने वाले का भी रिप्लाई आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ना अंदर वाले, मतलब ना दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे जो तुम्हारा एक्सटर्नल प्रेशर है और इंटरनल प्रेशर है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। माइट भी अभी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या सीन है, बट एट द एंड ऑफ टॉपिक यू विल अंडरस्टैंड कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अब यहीं पे एक बड़ा सा आदमी है, बहुत हैवी सा 100 किलो का, और उसके सामने एक छोटा सा बच्चा है 10 किलो का, और उसने बच्चे को मारा। तो क्या तुमको लगता है कि बच्चा उसको दोबारा से रिवर्ट बैक कर पाएगा? नहीं बेटा, नहीं कर पाएगा। तो वो जो बड़े से इंसान ने, वैसे मारना इज नॉट गुड, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, सो डोंट टेक इट सीरियसली। एक बड़े से आदमी ने जब छोटे से बच्चे को मारा ना, तो वो बच्चा उसको रिवर्स नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन यहीं पे 2 सेम एज के बच्चे, हाइट बॉडी में भी सेम टू सेम, अब क्या कर रहा है, एक दूसरे को मारेगा, तो दूसरा इतना अच्छा थोड़ी है कि वो उसको सह लेगा, नहीं सहेगा ना, तो वो भी उसको क्या करेगा, रिवर्ट करेगा। इसी प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन बच्चा नेचर में रिवर्सिबल प्रोसेस होते नहीं है, नेचर में ज़्यादातर इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में कहा है, थर्मोडायनामिक की अपनी एक दुनिया है और उसमें यूज होने वाले वर्ड्स जो है ये ज़्यादातर थर्मोडायनामिक ओरिएंटेड ही होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने ये बात कर ली। तो अगर कोई भी प्रोसेस जिसमें थोड़े थोड़े टाइम के बाद क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इस पोजीशन से ऊपर वाले पे गया, फिर ऊपर वाले से और ऊपर गया, ठीक है, तो ये चेंज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इसी इंक्रीज को हम क्या बोल सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो बोल सकते हैं। प्रोसेस में क्या होता है, छोटा सा इंक्रीज हो और फिर उस इंक्रीज को दोबारा से क्या किया जा सके, डिक्रीज किया जा सके, मतलब जाए, ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, ऊपर जाए और नीचे आ जाए। इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है, एनी रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है, एनी प्रोसेस conducted in such a manner that driving force, df beta is driving force, is infinitesimally greater than
opposing force which can be reversed, which can be reversed at, which can be reversed with slight change in condition. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो बोर्ड के पास लिखा हुआ है वो मेरा डेफिनेशन है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। ये जो ब्लैक मार्कर अभी मेरे हाथ में है ये मेरा ड्राइविंग फोर्स है, और ये जो ब्लू वाला है वो मेरा अपोजिंग फोर्स है। तो बच्चों, ड्राइविंग फोर्स कब तक आगे जाएगा? जब तक ड्राइविंग फोर्स क्या हो? ज़्यादा हो। ड्राइविंग फोर्स अगर इसके अंदर फोर्स ज़्यादा है तो ही ये आगे की तरफ जा पाएगा। और अगर देखा जाए कि अपोजिंग फोर्स बहुत कम है, मतलब ब्लू वाले मार्कर के पास तो उसके 10% एनर्जी भी नहीं है, तो क्या वो कभी उसको रिवर्ट बैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा स्टूडेंट्स। क्या होता है जब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हो, मतलब ड्राइविंग फोर्स हल्का सा ज़्यादा हो, हम एक एरो के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे ये मेरा एरो है, ये मेरा ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। अब इसके बाद ड्राइविंग फोर्स किधर जा रहा है? आगे की तरफ, और इससे थोड़ा सा कम मेरा अपोजिंग फोर्स है। मैंने अपने एरो को क्या किया है? थोड़ा सा छोटा बनाया है, ये शो करने के लिए अपोजिंग फोर्स क्या है? कम है। तो ये वाला रीजन मेरा क्या हो गया? अपोजिंग फोर्स हो गया, जो उससे थोड़ा सा ही कम है। अब अगर मुझे रिवर्सिबल प्रोसेस करना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इस जो मेरा अपोजिंग फोर्स थोड़ा सा छोटा है ना बच्चों, उसी को मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। मतलब क्या बोलता है? एनी प्रोसेस कंडक्टेड इन सच अ मैनर दैट ड्राइविंग फोर्स, ये जो आपका है ड्राइविंग फोर्स, इज इन्फिनाइटाइजिमली मतलब बहुत छोटा सा। अब बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, जैसे हम डेरिवेटिव में लेते हैं डेल्टा डी, उसी तरह से यहाँ पे वेरी स्लाइटली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स जो मेरा था बच्चों वो अपोजिंग फोर्स से हल्का सा ज़्यादा था, और जैसे ही मैंने अपने अपोजिंग फोर्स को हल्का सा बढ़ा दिया, मेरा ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। तो मतलब जो चीज़ ऊपर जा रही थी अब वही चीज़ दोबारा से क्या होने लगी है स्टूडेंट? नीचे आने लगी है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। कोई भी ऐसा प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है और किसी भी स्टेप पे हम उसको रोक दें, हम उसको स्टॉप कर दें, और स्टॉप करके हम थोड़ा सा उल्टा प्रेशर लगाए या अपोजिट प्रेशर लगाए और वो दोबारा से नीचे आ जाए, अपने पोजीशन पे चला जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपोजिंग फोर्स बोलते हैं। उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं स्टूडेंट। कोई भी ऐसा प्रोसेस जो हो और दोबारा से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाए उसी को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं बच्चों। लेकिन इसी को अगर आप देखोगे तो यू कैन गेट कंफ्यूज विथ क्लास 11 इक्विलिब्रियम और इसमें एक स्लाइट सा डिफरेंस होता है बेटा। इक्विलिब्रियम में हम एक ऐसा फॉरवर्ड एरो पढ़ते थे और एक बैकवर्ड एरो पढ़ते थे। हम बोलते थे दोनों जब इक्वल स्पीड में हो जाते हैं उस टाइम पे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाती है। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में याद रखो बच्चा, या तो ड्राइविंग फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा हो या तो अपोजिंग फोर्स ज़्यादा हो। यहाँ पे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होना चाहिए। वन शुड बी ऑलवेज स्लाइटली ग्रेटर देन दी अनदर वन, सो दैट वो जो स्लाइटली ग्रेटर है वो कभी स्लाइटली कम हो जाए और जो कम है वो ज़्यादा हो जाए और वो उसको क्या कर सके? रिवर्स कर सके। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। तो अब सवाल उठता है इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? तो मैंने तुमको जो एग्जाम्पल दिया था, दो बच्चे जो ऑलमोस्ट लगभग सेम है, दोनों, एक ने मारा तो उसने उसको क्या कर दिया? रिवर्ट कर दिया। ये प्रोसेस तुम्हारा रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन वहीं पे वो एक बड़ा सा आदमी और उसके सामने एक 10 साल का बच्चा, जब बड़े से आदमी ने मारा 10 साल का बच्चा 10 साल का बच्चा उसको रिवर्ट नहीं कर पाया। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें चीज़ एक बार हो गई, होने के बाद वो रिटर्न ना आ पाए किस पे बच्चा? अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, वी कॉल इट एज अ
इरिवर्सिबल प्रोसेस, हम इरिवर्सिबल प्रोसेस उसको बोलते हैं, कोई भी ऐसा प्रोसेस। अब इस पिस्टन की हेल्प से बोलूं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। देख बेटा, मैंने 1 किलो उठाया तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर हुआ, फिर मैंने एक और उठाया, पिस्टन और थोड़ा सा ऊपर हुआ, फिर मैं धीरे धीरे करके मैं क्या कर रही थी, वेट उठा रही थी और मेरा पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन एक पॉइंट आया जब मैंने 3 किलो हटा दिया, देन आई रियलाइज नहीं, मुझे इसको दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है बच्चा। तो मैंने क्या किया, इसको दोबारा से एक वेट को लिफ्ट डाला यहाँ पे, और मेरा वेट पिस्टन क्या हो गया, बाहर का प्रेशर पड़ गया और पिस्टन नीचे आने लगा। फिर मैंने वेट डाला और फिर मैंने वेट डाला, धीरे धीरे करके कोई चेंज की और उसमें स्लाइड चेंज आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर तुम पूछोगे मैम इसी में हमारा इरिवर्सिबल का एग्जाम्पल क्या हो गया, तो बच्चों अगर मैंने ये पूरे 6 किलो वेट, पूरा जो मेरा ये 6 किलो वेट है ना, इसको एक ही बार में हटा दिया, मतलब मैंने अपने बाहर का प्रेशर पूरा से पूरा एक ही बार में खत्म कर दिया, तो क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर जाएगा और एकदम टॉप पोजीशन पे आ जाएगा। ऐसे कंडीशन में जब सडन चेंजेस होते हैं, सडन इंक्रीज होता है, तो उसको हम दोबारा से उसको ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं ला सकते। सो दिस इज व्हाट रिवर्सिबल प्रोसेस इज। बट अभी आपको यहाँ पे कुछ फीचर्स पढ़ने हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के। व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस? सो दिस इज माय फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस. In thermodynamic, the whole concept will be of reversible process. So dear students, पहला फीचर जो मैं आपको बता रही थी, मैं बोल रही थी कि हमेशा तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, या तो एक स्लाइटली बड़ा हो या तो एक स्लाइटली छोटा हो। तो फर्स्ट फीचर जो है, दैट फीचर इज ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स बच्चा जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो आगे की तरफ जा रहा है, अपोजिंग फोर्स जो है वो रिटर्न आ रहा है। अपोजिंग फोर्स आर स्लाइटली ग्रेटर और इट कैन बी स्मॉलर एज वेल। वो छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। वैसे देखा जाए आगे की तरफ जाना है तो ड्राइविंग फोर्स को ज्यादा होना चाहिए, स्लाइटली ग्रेटर देन ईच अदर। ये तुम्हारा पहला फीचर्स हो गया, क्योंकि अगर दोनों सेम हो जाए तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगी, तो ना तो ड्राइविंग फोर्स आगे की तरफ बढ़ेगा और ना ही अपोजिंग फोर्स। बच्चा दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, पहले हमने क्या बोला, अगर ये मेरा ड्राइविंग फोर्स है तो अपोजिंग फोर्स, दोनों के बीच में स्लाइट सा डिफरेंस हो, तो अगर मुझे इसी पोजीशन को रिवर्स करना है या इसी कंडीशन को चेंज करना है, तो क्या बोलता है सेकेंड फीचर, स्लाइटली इंक्रीज और डिक्रीज। अपर एरो इंडिकेट इंक्रीज, लोअर एरो एज डिक्रीज। स्लाइटली इंक्रीज और डिक्रीज में रिवर्स द कंडीशन, स्लाइटली इंक्रीज और डिक्रीज रिवर्स द कंडीशन। अब इसके बाद जो मेरा थर्ड पॉइंट होगा बेटा, माय थर्ड पॉइंट विल बी सच एज, दोनों में अभी स्लाइटली इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है, इट टेक प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है। तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस के। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे आप छोटे छोटे स्टेप्स में चेंजेस कर रहे हो और फिर at any point, at any instant of time, by slightly changing the condition, by slightly increasing your external pressure, you can come back to your original pressure. Okay, so you can come back to your original position. Whereas in irreversible process it happen, it is unidirectional. एक बार हो गया तो वो दोबारा से return back उस position पे नहीं आता है। तो कुछ conditions होते हैं जो तुम्हारे reversible process के लिए बहुत important है।
पहला कंडीशन अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। दूसरा कंडीशन है तुम्हारा अपोजिंग फोर्स या ड्राइविंग फोर्स को अगर हल्का सा बढ़ा दिया जाए तो कंडीशन को हम किसी भी पोजीशन पे रिवर्स कर सकते हैं। ड्राइविंग फोर्स जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, अपोजिंग फोर्स को आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो क्या हो गया, अब वो आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ आने लगा। और थर्ड पॉइंट जो है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत स्लो है, स्टेप्स में हो रहा है ना, बहुत सारे स्टेप्स में हो रहा है। It is a very slow process when we compare to irreversible process. Apart from that, if you see, तो हर एक पॉइंट पे, जैसे अब यहाँ पे रुक गया था 5 किलो का वेट डालने के बाद, तो इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दोबारा मेंटेन होगा। फिर एक और डालोगे तो दूसरे पॉइंट पे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो हर एक स्टेप पे, एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप, एट द एंड of every step, position of equilibrium is established। हर एक पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हर एक स्टेप पे एस्टैब्लिश होगा, फिर वो चेंज हो जाएगा और इस तरह से बार बार ये चेंज हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज आपने रिवर्सिबल प्रोसेस देखा है, आपको आगे जाके रिवर्सिबल प्रोसेस की ही बात करनी है। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकता है। रिवर्सिबल प्रोसेस के आपने कुछ फीचर्स देखे हैं। और लास्ट पॉइंट यू कैन राइट डाउन, इट इज अ स्लो प्रोसेस। फिफ्थ पॉइंट यू कैन राइट डाउन, इट इज अ स्लो प्रोसेस। ये एक स्लो प्रोसेस है जो हो रहा है। Okay students, that's all for today. In next lecture we are going to see nature of heat and work.